children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our exercise 4.2. So we were on question number 1. We have already done 4 parts of question number 1. The name of the chapter is Quadratic Equations, chapter number 4 of class 10th. Alright, so now we'll be continuing with our 5th part of question number 1. Only one part was left that we'll be covering now. So let's start with part number 5 of question number 1. Fifth part of question number 1 says find the roots of the following quadratic equations by factorization. So we have to find the roots of quadratic equation and by factorization. So part number 5 is 100x square minus 20x plus 1 equals to 0. So this is our 5th part. So again, as we can see, nothing is common from all the 3 terms. It means we have to middle term split this equation. और इसमें middle term splitting होगी minus 20 of x की. So minus 20x को हम middle term split करेंगे और ऐसे middle term split करेंगे 2 parts में कि plus करके तो आएगा minus of 20x and multiply करके आएगा 100 into 1 100, right? Because 100 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है and 1 कांस्टेंट टर्म है. So 100 into 1 100. So अब 100 के फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे? It can be 1 into 100. It can be 2 into 50. It can be 20 into 5. It can be 10 into 10. ठीक है, तो इन फैक्टर्स में से हमें देखना है कि प्लस करके 20 किस में आएगा. सो इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा. 20 plus 5 is 25, बट इसमें आ सकता है. 10 plus 10 is 20. इट मीन्स इट इज स्प्लिटेड इन 2 पार्ट्स 10x and 10x. बट हमें चाहिए माइनस ऑफ 20x. अगर हम एक को माइनस एक को प्लस लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. इट मीन्स हमें दोनों को माइनस लेना पड़ेगा. माइनस माइनस प्लस 20x एंड साइन नेगेटिव. सो माइनस ऑफ 20x आ जाएगा इन दोनों से. सो माइनस ऑफ 10x में तो ये स्प्लिट हुआ. बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज नोट डाउन भी करनी है. सो नाउ इट बिकम्स 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1. अब इसमें भी हमें टू टर्म्स में से कॉमन लेना है. सो फ्रॉम दीज 2 टर्म्स 10x इज कॉमन. वी आर लेफ्ट विथ 10x minus 1. अब यहाँ पे इट इज माइनस 10x प्लस 1. साइन डिफरेंट है यहाँ से. इट मीन्स माइनस भी कॉमन लेंगे सो दैट साइन अब सेम हो जाए. इट विल बी 10x minus 1 equals to 0. राइट. सो 10x minus 1 होल कॉमन एंड 10x minus 1 इज लेफ्ट. सो यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम है. व्हाट डज दिस मीन? कि दोनों रूट्स भी सेम आएंगे. 10x minus 1 equals to 0. 10x minus 1 equals to 0. So 10x equals to 1. X equals to 1 upon 10. Similarly, 10x equals to 1. X equals to 1 upon 10. So 1 upon 10 are the 2 roots of this quadratic equation. Let me see, is it visible? Yes. So 1 upon 10 are the 2 roots of the quadratic equation. 100x square minus 20x plus 1 equals to 0. So 1 upon 10 and 1 upon 10 are the 2 roots. Please note down this part.
part number 5 of question number 1. With this we have completed our question number 1 also. Now after this we'll be starting with our question number 3. Okay, so please note down this first. Okay, so now see, question number 2 is not as such important. So we'll be starting with the third question now. So question number 3 says question number 3 of exercise 4.2. So the third question says find two numbers whose sum is whose sum is 27 and product is whose sum is 27 and product is 182. So हमें two numbers find out करने हैं whose sum is 27 and product is 182. Now children see, जब भी हमारे पास कोई ऐसा question आता है, what comes in our mind is that find two numbers whose sum is 27 and product is 182. मतलब अगर दोनों numbers x और y हैं तो x plus y तो 27 हो गया और x into y 182 हो गया, right? ये mind में आता है. But this is quadratic equation and quadratic equation की general form क्या होती है? ax square plus bx plus c
where a is not equal to 0. What does this mean? देखो यहाँ पे वेरिएबल सिंगल है, x है, y तो नहीं है, टू वेरिएबल तो नहीं है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसा हो सकता है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होता है x और y, मतलब कोई भी हो बट सिंगल होगा, वन ही होगा, x y दोनों नहीं होंगे साथ में. सो व्हाट डज दिस मीन कि इसमें हम x और y नहीं ले सकते, नहीं लेट कर सकते उन टू नंबर्स को हम x और y. ठीक है, ये तो बात क्लियर हुई. बिकॉज बहुत बच्चे इसमें बोलते हैं मैम लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर बी y, so x plus y is 27 and x y is 182. No, this is not linear equation in two variable, right? So what we will do is, see, the solution of this would be, let one number be x. एक नंबर को हमने x ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा? अदर नंबर वुड बी 27 minus x. ऐसे ही होता है. अगर I gave you this example earlier also. If we, मेरे पास और आपके पास मिला के 10 टॉफीज हैं, राइट? सो इफ आई से आई हैव 3, सो व्हाट डज दिस मीन कि आपके पास कितनी है? 10 minus 3. ठीक है, जितनी मेरे पास है उसको अगर आप टोटल में से माइनस कर दोगे, यू विल गेट योर शेयर ऑफ टॉफीज. ओके, यही हमने इधर किया. टोटल सम दोनों का है 27. अगर एक x है, if one is x, the other one will be 27 minus x. ठीक है, सो अब इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है हमें 182. सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into 27 minus x equals to 182. यही गिवन है हमें, दोनों का प्रोडक्ट है 182. सो अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे x को पहले 27 से, देन x को x स्क्वायर से. सो दिस विल बी 27x माइनस ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 182. सी, अब यहाँ पे है माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 27x. इन दोनों को हम उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं. सो लेट्स डू दैट, सो दैट हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए. इन दोनों को हमने इधर ट्रांसपोर्ट किया, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया प्लस, इक्वल्स टू 0. ये बन गई हमारी इक्वेशन. दिस इज आवर इक्वेशन. x square minus 27x plus 182 equals to 0. Now we have to middle term split this equation. Minus 27x को हमें कैसे middle term split करना है? So that plus करके तो आए minus 27x and multiply करके आए 1 into 182 means 182. अब आप सोचोगे मैम 182 के फैक्टर्स हम कैसे बताएंगे? तो 182 को हम अभी यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 182 का हम LCM लेते हैं. ठीक है, सो सी 2 से जा रहा है ये, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2. नाउ 91 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, बट 7 के टेबल में 91 आता है. 7 13 जा 91 एंड 13 1 जा 13. तो ये तीनों हो गए फैक्टर्स 182 के. अब हम इससे फैक्टर्स हमें 2 पार्ट्स में लिखने होते हैं, राइट? तो 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 हो गया वन फैक्टर, तो 14 इंटू 13. ठीक है, 14 इंटू 13 इज 182. नेक्स्ट फैक्टर हो गया 13 इंटू 7 कर लो, 7 3 जा 21, 1 यहाँ पे 2 के 7, हाँ 91 इंटू 2. ठीक है, सेकेंड हो गया ये. थर्ड हो गया 13 2 जा 26, 26 इंटू 7. तो ये हो गए 3 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स 182 के. अब हमें देखना है कि प्लस करके 27 किसको आएगा. तो 14 प्लस 13 ही 27 होता है. फर्स्ट वाला ही आ गया हमारा आंसर, बिकॉज इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 तो कभी भी नहीं आएगा, राइट?
So it means 14 and 13 is the accurate pair जो हमें यहाँ पे करना है split. So 14x and 13x को हमें प्लस करना है, बट हमें चाहिए अब माइनस ऑफ 27x, राइट. सो अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा, राइट. इट मीन्स दोनों को हमें करना है माइनस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस एंड साइन नेगेटिव जब ही आएगा, ठीक है. सो यहाँ से वी गॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज -14x -13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. Now taking common from these two terms and then from these two terms, what we will get? I think we need to rub this part now. I hope this is clear. थोड़ा सा बड़ा number आ जाएगा. Don't get confused. We can take the LCM, we can make the pairs, and then we can solve it. Now, see, from here x is common. We are left with x minus 14. ठीक है. यहाँ से minus 13 कॉमन लेते हैं, ठीक है. 13 की टेबल में 182 आता है 14 पे. सो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x माइनस 14 होल कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद x माइनस 13 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. नाउ अब इन दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट करेंगे. सो x आ गया यहाँ से 14 एंड यहाँ से x आ गया 13. इट मीन्स जो टू नंबर्स दैट वी वर सर्चिंग, द टू नंबर्स आर, देखो फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो सेकेंड नंबर ऑटोमेटिकली 13 होगा, बिकॉज अगर फर्स्ट नंबर 14 है सेकेंड नंबर होगा 27 माइनस 14, तो विल गेट 13. सेकेंडली सेम अगर हम फर्स्ट नंबर को 13 ले लेते हैं तो सेकेंड नंबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा 14. आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज जो दूसरा नंबर है वो 27 में से पहले नंबर को माइनस करके ही आएगा, ठीक है. सो वी कैन डू दिस लाइक दिस ऑल्सो. देखो यहाँ पे हमने 13 कॉमन लिया, x माइनस 14 कैसे बचा, देखो 182 को डिवाइड करते हैं 13 से, विल गेट 14 ओनली. 13 वन जा 13, 52, 13 फोर जा 52 होता है. सो 14, तो इसलिए हमने 13 को कॉमन लिया एंड वी आर लेफ्ट विद 14 नाउ. ऑलराइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए था बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. टू नंबर्स फाइंड करने थे. ऑलवेज रिमेंबर हम टू वेरिएबल नहीं पढ़ रहे तो हम y लेट नहीं करेंगे. The next number would be sum, total sum में से minus the first one. So 27 minus x. So the two numbers comes out to be 14 13 or 13 14. Right? Please note down question number 3 of exercise 4.2.
so after this question number 3, we are discussing one random question. I hope this question number 3 is clear now. We are discussing one random question, not from the exercise. So अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. One random question says find the roots of 2x square minus 5x plus 3 equals to 0. ओके, तो हमें रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही जाएंगे हम, बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ इनमें से कुछ भी कॉमन है फ्रॉम ऑल दी 3 टर्म्स. सो अब माइनस 5x को कैसे स्प्लिट करना है कि प्लस करके तो आए माइनस ऑफ 5x एंड मल्टीप्लाई करके आएगा 2 इंटू 3 6. 6 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 6 2 इंटू 3. अब प्लस करके 5 चाहिए तो वो सिंपल सा 3 और 2 को प्लस करके आएगा 2x एंड 3x को प्लस करके आएगा 5x. बट वी वॉन्ट माइनस 5x. अब माइनस 5x चाहिए, एक को माइनस रखते हैं एक को प्लस रखते हैं तो ये माइनस हो जाएंगे. हमें प्लस करने हैं तो दोनों को माइनस रखते हैं. अब माइनस माइनस प्लस 5x एंड साइन नेगेटिव. अब क्लियर है. माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे ये 2x स्क्वायर एज इट इज. नाउ दिस इज क्लियर. अब ये दो दो के पेड़ बना के विल टेक कॉमन. सो यहाँ से कॉमन है 2x, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 1. यहाँ से कॉमन है माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. देखो अब यहाँ पे हमने माइनस भी कॉमन क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे प्लस था हमें चाहिए माइनस 1. ठीक है, दैट्स. और यहाँ पे माइनस था हमें चाहिए प्लस x. That is the reason we took minus common as well, so that the brackets become exactly same. So bracket whole common and 2x minus 3 का एक bracket और बन गया. दोनों को separately equal to 0 put कर देंगे. 2x minus 3 equal to 0. x equals to 1. यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 2x equals to 3. x equals to 3 upon 2. So x equals to 1 and x equals to 3 upon 2, which means that 1 and 3 upon 2 are the roots of the quadratic equation 2x square minus 5x plus 3 equals to 0. This was a very easy and random question. ऐसे बीच बीच में extra questions करते रहना चाहिए so that the concept जो है वो mind से skip ना हो. Okay, so this was a random question that we discussed so that हमें ये पता हो कि roots कैसे निकाले जाते हैं by middle term splitting. Please note down this question, this extra question as well.
Okay, so this was one extra question that we discussed. So I hope you have written this also in your notebooks. Now I am signing up here and I'll be coming up with a new video. In that video, we'll be discussing question number 4, 5 and 6 of question number of exercise 4.2. 3 questions are left that we will be discussing in our next video, and then exercise 4.2 is also complete. Okay, so stay tuned for my next video. If you have any doubt, please let us know so that I can solve it for you. Thank you.